داستان پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے نااہل، ناقابل برداشت اور نالائق حکمرانوں کی ہے جن سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور ان کا ذکر کرنے میں اگر تہذیب کا دامن کہیں چھوٹ جائے تو اسے عین تقاضائے تہذیب جانیے۔ اس واسطے کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سر بازار روایتی طور پر داستان صاحب نامے سے شروع کی جاتی ہے۔ ہم شہر عاشوق کے ایک آخری بند سے کریں گے کہ گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں، جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔ تو دھیان لگا کر گوش ہوش سے سنو کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، کہانی ایسی جھوٹی نہیں، بات ایسی میٹھی نہیں۔ تو بادشاہ سلامت کو مبتدائے فیاض نے اتنا کچھ دیا تھا کہ تمام دن بس تخت پر بیٹھے چوتڑوں سے گھاس کاٹا کرتے، سوائے رفع حاجت کے ہر حاجت کو نوکر رفع کرتے، محل کی وہ شان کے تاج محل کو شمائے قلعہ معلّہ دیکھے تو پانی پانی ہو جاتا، حرم سرا میں پریوں کا ظہور، ہر پری نور علی نور، چشم بدو گویا کے رشک حور، بلکہ بقول مولانا مرکب عنبر و کاف، باغ میں اس کے چشمے جاری، باغ میں اس کے چشمے جاری، مٹھاس پہ جن کی شہد بھی والی، گلوں کی ان میں وہ گلکاری، انار ہے چھوڑے گلے اناری، رنگے گل کا وہ نئے رنگ دیکھ جسے خود نرگس تنگ، بلبل تو پھر بلبل ہے ہر ذرہ نغمہ سنگ، شاخوں پر درختوں کی رس بھرے پھل اور جھولوں میں رس بھری پریاں پریاں جھولتے، پریزاد انہیں پینگے دے کر سب سے پینگے بڑھاتے، ہر آنے جانے والے کو اپنے حسن دلکش کا نشانہ بناتے، دل دیکھنے والوں کے ہزار ہندورے کھاتے، اور اگر کسی پریزاد پر آ جاتے تو خالی ہاتھ و ناشاد و نامراد تو نہ جاتے، بلکہ نیازی وہاں مراد صحیح پاتے۔ مگر اس باغ لشک مینو سواد کا بھی باغ شداد ارم کا سا حال تھا کہ جہاں بادشاہ سلامت نے اس میں قدم رنجا فرمایا وہی ان کا سر چکرایا، بوئے گل جو دماغ میں گئی ناک میں اس سے دم آئے، چھینکیں آئیں، نزلہ آیا، ناک کے رستے رینٹ آیا، جس سے سب کا جی متلایا، لوٹ کے ڈوبو گھر کو آیا۔ اور یوں تو بادشاہ سلامت کی منبوہات و ممدوعات کی تعداد بے شمار تھی، مگر اب وہ کسی کو شمار میں نہ لاتی، اور بالفرض اگر کوئی زوجہ حق زوجیت کا سوال زبان پر لاتی تو زبان درازی پر اتر آتے کہ اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، میں نے مانا کہ تم ایک پہ کرے رانائی ہو، چمن دہر میں روح چمن آرائی ہو، بنت مہتاب ہو گردوس ہو کر آئی ہو، مجھ سے ملنے میں اب اندیشہ رسوائی ہے، میں نے خود اپنے کیے کی یہ سزا پائی۔ اور یوں تو ان کے شاہی پکوان میں دنیا کی انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، مگر سب خاکم بدہن کے مصداق منہ میں آ کر خاک ہو جاتے، غرض کے زبان بد ذائقہ، صحبت خوباں بے لطف، سیر و تفریح بے سود، زندگی ان سے آنکھ چراتی تھی، ہنسی ان کا منہ چڑھاتی تھی، خوشی ان کا منہ چڑھاتی تھی، ہنسی فقط اپنے آپ پر آتی۔ اگر آج کل کے الفاظ میں کہیں تو بادشاہ سلامت کچھ بوریت اور ڈپریشن کا شکار تھا۔ ایسے میں ان کا
वजीर बद तदबीर जो उनका खुशामदी टट्टू था। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। अब तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। करना मीठी हो तो कड़वी भी खुशामद कीजिए, करना मीठी हो तो कड़वी भी खुशामद कीजिए, जानी दुश्मन हो तो उसकी भी खुशामद कीजिए, कुछ ना हो पास तो खाली भी खुशामद कीजिए, सच अगर पूछो तो झूठी भी खुशामद कीजिए, क्योंकि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। अब तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। लगे हाथों इस खुशामदी टट्टू की विजारत पर मामूली का किस्सा सुनते चली। हुआ ये कि एक दफा का जिक्र है, बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि उनकी सल्तनत में जो सबसे ज्यादा दीनदार आदमी होगा, अमीरुल मोमिनीन होगा, दयानतदार होगा, दीनदार होगा, उसे मैं अपना मुर्शीद खास बनाऊंगा। सना ये क्या था, देखते के देखते सारा मुल्क दीनदार हो, मगर बादशाह सलामत को तो सबसे ज्यादा दीनदार आदमी की तलाश थी। ऐसे में एक शख्स उनके दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर मुझे खुदा का कुर्ब हासिल है, मैं वलीउल्लाह। उसने कहा इसका सबूत क्या है? उसने कहा, हुजूर मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि अपने आप को दुनिया के अजीम तरीन बादशाह की खिदमत में पेश कर, और ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस दुनिया के सबसे अजीम तरीन बादशाह आप हैं, खुदा के नायब, खुदा के बाद अगर कोई खुदा का नायब है तो आप हैं, खुदा के बाद अगर खुदा का कोई रूप है तो आप हैं, इफ्तिखारे अर्ज़ भी फख्रे समा भी आप हैं, गर खुदा कहता तो हम कहते खुदा भी आप हैं। बादशाह ने दिल में ख्याल किया, कहता तो सच लेकिन इम्तिहान लेना जरूरी है, लिहाजा उसने कहा इसका सबूत क्या है, और अगर तू तुझे खुदा का कुर्ब हासिल है तो तेरे पास कोई मोजिज़ा भी होगा। उसने कहा, हुजूर मेरे पास एक मोजिज़ा है। उसने कहा, क्या? कहा, हुजूर मेरे पास एक ऐसा मोजिज़ा है कि जो कुछ किसी के दिमाग में चल रहा होता है, जो भी इंसान सोच रहा होता है, वो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो बता इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? उसने कहा, हुजूर आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। बस साहब उसी दिन वो वजारत पर मामूल हो गए। तो आज उस वजीर ने दस्तबस्ता अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मुझे आपकी हालत देखकर बहुत अफसोस होता है, दिल खून के आंसू होता है, जी चाहता है आपकी बोरियत दूर और रंज का खून करूं। बादशाह ने कहा, नहीं वजीर, हम तमाम माजूने कुश्ते मुखबियात इस्तेमाल करके देख चुके हैं, गई जवानी लौट कर ना आएगी। तो हुजूर मैं इस वक्त आपके जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी आरिज़े की दवा लाया हूँ। उसने कहा, वो क्या? वज़ीर ने कहा, हुजूर नई कहानी, मसल मशहूर है, नई कहानी गुड़ से मीठी, दास्तान गुड़ियों को बुलवाइए, किससे सुनिए, जिंदगी की शीरीनी वापस आ जाएगी। उसने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये कमबख्त दास्तान को किस्सा सुनाने की उजरत मांगते हैं, और न तो कंजूस बादशाह के किस्सा सुना कर हमारा नाम बदनाम करते हैं। हुजूर इसका भी हल मेरे पास मौजूद है। आप ऐलान करवाइए, जो शख्स आपको नई कहानी सुनाएगा आप उसे माले दुनिया से गनी कर देंगे। उसका वजीर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शाही खजाना खाली पड़ा है, मुल्क सैलाब फंड पर चल रहा है, कभी हम IMF से कर्जे मांगते हैं, कभी अरबों के आगे हाथ और दीगर आज़ा फैलाते हैं, रूसियों की बंगाली में रूसिया करवाते हैं, हम किस तंगदस्ती में सीज करते हैं, तुम्हें क्या इल्म माले दुनिया से तुम्हारे फुक्का खाली करेंगे? हुजूर बात तो पूरी सुनिए, आप ऐलान करवाइए कि जो शख्स आपको नई कहानी सुनाएगा, यानी ऐसी कहानी जो आपने पहले न सुनी हो, सिर्फ उसे आप माले दुनिया से गनी करेंगे। बादशाह ने कहा, और अगर ऐसी कहानी किसी ने सुना दी तो? वज़ीर ने कहा, तो आप कह दीजिएगा ये मैंने सुन रखी है। बादशाह ने कहा, अरे वाह, यानी एक तीर से दो शिकार, यानी चुपड़ी और दो। उसने कहा, नहीं हुजूर, ऐसे ही मौके के लिए तो कहते हैं कहानी खत्म, पैसा। तो बादशाह को अपने वजीर की ये सस्ती और टिकाऊ तरकीब बहुत भाई। उसने फौरन ऐलान करवा दिया कि बादशाह को गुरबा का, गरीबों का बहुत ख्याल है, और उसने गरीबी मिटाऊ स्कीम निकाली है कि जो शख्स बादशाह को ऐसी कहानी सुनाएगा जो उसने पहले कभी ना सुनी हो, तो बादशाह उसे 20,000 सोने की अशरफियां इनाम में देंगे। बस फिर क्या था, एक से एक दास्तान, वो किस्सा
بادشاہ وہ دربار میں آتا اور روزانہ کہانی سناتا. ایسے ایک شخص دربار میں داخل ہوا اور اس نے کہا حضور حاضر ہوں دل و جان سے گرچہ کیڑا ہوں میں, ذرا سا کہیے کہانی سنیے گا. دھیان لگا کر ہوش سے سنو کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. کہانی ایسی جھوٹی نہیں, بات ایسی نیچی نہیں. تو بادشاہ سلامت کا ایک شاہی حجام جو حجامت کے فن میں مشاق اور باتیں بنانے میں طاق, زبان اس کی قینچی کی طرح چلتی تھی, تازہ فقرے اس کے منہ سے کٹے ہوئے بالوں کی طرح چھوٹتے تھے. اسی طرح ایک دن زبان چپڑ چپڑ چل رہی تھی اور قینچی کھچر کھچر چل رہی تھی. زبان چپڑ قینچی کھچر چپڑ کھچر کھچر کھچر. اچانک قینچی بھی اٹک گئی, زبان بھی چلنا لگی. ایسا سکوت تاری ہو کہ بادشاہ بھی سناٹے میں آ گیا. دل میں خیال کیا ہو نہ ہو یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے, نائی اور خاموش ہو جائے. اتنے میں نائی نے دس بستہ عرض کیا بادشاہ سلامت جان بخشی ہو تو عرض کروں. بادشاہ نے کہا کہو کہو. اس نے کہا حضور آپ کے سر پر سینگ اگائے. بادشاہ نے جو سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو معلوم ہوا تو اسے مخصوص اگائے. دل میں خیال کیا یا اللہ اب تک تو لوگ مجھے بیوقوف اور جاہل سمجھتے تھے, اب تو جانور بھی کیا نصیب کر دیں گے. لیکن نائی نے کہا حضور آپ بالکل فکر نہ کیجئے, میرے استرے کی مدد سے یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. بادشاہ نے کہا بدبخت تو ہمیں گدھا کہتا ہے. میں نہیں حضور میں تو روزمرہ کہتا ہوں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے تو اس سے بھی بڑا کارنامہ کیا تھا. میں نے کہا تیرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے کیا کارنامہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضور کیا آپ نے میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا قصہ نہیں سنا؟ وہ تو الف لیلہ میں کی درج ہے. اس نے کہا کیا ہے تیرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا قصہ؟ اس نے کہا حضور جیسا الف لیلہ میں درج ہے ویسا ہی سناؤں گا. تو نائی نے سنانا شروع کیا. تو جب 708ویں رات آئی تو کہنے لگی شہزاد اے جواں بخت شیراز میں ایک رہتا تھا نائی. وہ نائی تو تھا ہی مگر اس کو بخشا تھا قدرت نے ایک اور نادر گراں تر ہنر بھی کہ جب بھی کسی مرد دانا کا ذہن رسا زنگا لندہ ہونے کو آتا تو نائی کو جا کر دکھاتا کہ نائی دماغوں کا مشہور ماہر تھا. وہ کاسا سر سے ان کو الگ کر کے ان کی سب آلائشیں پاک کر کے پھر اپنی جگہ پر لگانے کے فن میں تھا کامل. خدا کا یہ کرنا ہوا ایک دن اس کی دکان سے ایران کا ایک وزیر کہنسال گزرا اور اس نے بھی چاہا کہ وہ بھی اپنے الجھے ہوئے ذہن کی اثر نو صفائی کرا کیا. کاسا سر کو نائی نے خالی ابھی وہ اسے صاف کرنے لگا تھا کہ ناگاہ آ کر کہا ایک خواجہ سرانے میں بھیجا گیا ہوں جناب وزارت پناہ کو بلانے. یہ سن کر سراسیمہ ہو کے اٹھا جو وزیر ایک دم تو رہ گیا پاس دلاک کے مغز اس کا. وہ بے مغز سر لیے دربار سلطان میں پہنچا. مگر دوسرے روز اس نے جو نائی سے آ کر تقاضا کیا تو اس نے کہا کل شب پڑوسی کی بلی کسی روزنے در سے گھس کر جناب وزارت پناہ کے دماغ فلک تاز کو کھا گئی. اب اگر حکم سرکار ہو تو کسی اور حیوان کا مغز لے کر لگا دو. تو رکھ دیا دانیال زمانہ کے سر میں اس نے بیل کا مغز لے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب وزارت پناہ اب فراست میں دانش میں کاروبار وزارت میں پہلے سے بھی چاق و چوبند تر ہو گئے. تو نائی نے کہا بس حضور اسی طرح آپ بھی چاق و چوبند تر ہو جائیں گے جیسے ہی میں یہ آپ سے سینگ صاف کر دوں گا. مگر بادشاہ نے کہا دیکھو خبردار اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا. کہا حضور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس بات کا ذکر میرے منہ سے میرے کان نہ سنیں گے. بس آپ یہ قسم کھانا تھی کہ نائی کے پیٹ میں شدید درد ایسا شدید درد تھا کہ بستر سے لگ گیا بیمار پڑ گیا. یارو جب حاکموں کے عیب چھپائے جائیں تو بیماری ہی جنم لیتی ہے. ماں اس کی پریشان ہوئی. اس نے کہا بیٹا ایسا کیا ہو گیا کہ تو اچانک سے بیمار پڑ گیا؟ اس نے کہا مر راجا کے کیا ہوا؟ راجا کے کیا ہوا؟ اس نے کہا مر راجا
किस्सा न सुना जिसके पास राजा का एक राज था? उसने कहा अम्मा ये छैला चमेली का किस्सा क्या है? उसने कहा तो बेटा ध्यान लगाकर गोशे होश से सुन कि जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो बहुत पुराने जमाने की बात है। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहानी ऐसी झूठी नहीं, बात ऐसी मीठी नहीं। तो बादशाह सलामत की रैयत में एक शख्स था कि नाम उसका छैला चमेली मशहूर था। किस वास्ते कि जब भी वो हंसता मुस्कुराता खिलाता चारों तरफ चमेली की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती और इस ऐसी खुशबू फैलती कि शायद पुकार उठता कि आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया, जैसे खुशबू जुल्फ़े बहार आ गई, जैसे पैगाम दीदार यार आ गया। जब इस बात की खबर बादशाह सलामत को हुई कि उनकी रैयत में एक शख्स है कि छैला चमेली के नाम से मशहूर है, उसे तलब किया और उससे कहा कि भाई हमने सुना है कि तेरे हंसने से चारों तरफ चमेली की खुशबू फैल जाती है, तो जरा हंस। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया तो उसकी हंसी तो दूर मुस्कुराहट भी काफी हो। बादशाह कहे हंस, वो मुंह में दही जमाए बैठा। अब तो लोग भी परेशान हुए। सिपाहियों बादशाह ने कहा हंस, तो ना हंस के दे। दरबारी कहे हंस, तो ना हंस के दे। सिपाही कहे कमबख्त हंस। हंसी तो साहब ऐसी रफ्तू चक्कर हुई जैसे गधे के सर से सी। अब साहब करे तो क्या करे, उसे हुकूमत खाने में डलवा दिया। रोजाना उस पर तशद्दुद होता, रोजाना उसे बुला जाता कमबख्त हंसते, हमारी भी ड्यूटी लगाई हुई है। मगर साहब अब वो हंसना तो दूर, अब तो वो उम्मन गमज़दा रहने लगा। दिल में ख्याल करता कोई सूरत बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, वो इसी सोच में गलता था कि उसे दीवार के उस पार से, जिंदान की दीवार के उस पार से किसी मर्द और औरत की बातें करने की आवाज सुनी। और उन बातों में कुछ ऐसा था कि उसे इतनी हंसी आई कि हंस हंस कर मोट हो गया और चारों तरफ भीनी भीनी चमेली की खुशबू है। उसे अगले दिन बादशाह ने तलब किया और उससे जानना चाहा कि भाई क्या बात थी किस जिसमें तू इतना हंसा। ये बात न पूछिए, पता क्या बात थी? दूर आपने कहा था मैं हंसूं, अब देखिए मैं हंस रहा हूं, मुझे बात न पूछिए। बता क्या बात थी? बहरहाल मजबूर होकर उसे बताना पड़ा। कहने लगा हुजूर मैं जिंदान में था कि घर से एक औरत की आवाज आई कि अगर हमारे इश्क की खबर बादशाह को यानी मेरे शौहर को हो गई तो क्या होगा? उधर से मर्द ने जवाब दिया अरे काहे का बादशाह, वो तो काट का उल्लू है, असल बादशाह तो मैं सिर पे सालार हूँ। वो तो ऐसा काट का उल्लू है कि अगर हमें चुफ्ती की हालत में भी ताकि तो यही समझे कि मुल्क की हिफाजत का इक़दाम हो रहा है। बादशाह सलामत को ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने चाहा कि अपने सिर पे सालार को सजा दिलवाएं, उसको बरतरफ करें, मगर सिर पे सालार ने एक्सटेंशन ले ली, बादशाह को बरतरफ। लेकिन इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए कि किस वक्त मुंह खोले किस वक्त ना खोले, वरना मेरा भी हाल उसी कछुए की तरह हो जाएगा जिसने गलत वक्त पर मुंह खोला और अपनी जान से गया। ये कछुए का किस्सा क्या है? अम्मा का तूने कछुए का किस्सा ना सुना? देखा तो अम्मा ध्यान लगाकर गोशे होश से सुन कि जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहानी ऐसी झूठी नहीं, बात ऐसी मीठी नहीं। बादशाह सलामत की रैयत में एक हसीन और जमील बाग था कि रश के नीम सवार था। तरह तरह का चरिंद और भांत भांत का परिंद उसमें आबाद था। कहीं कुमरियों के थे कहकहे, कहीं बुलबुलों के थे चहचहे। सुंबुल की जुल्फों में ऐसे थे बल कि चलती हवा भी थी खा खा के बल। और सूसन की जबान का क्या बयान हो, खामोश गोया हजार दास्तान। उसी बाग में
उसमें ऐसी रंग बिरंगी कि देखे से रंग छूटे, कोई मुसव्विर देख पाए तो खुद तस्वीर हो जाए। दरख्त उस पर यूं साया किए रहते, गोया उसे आगोश में समेटना चाहते हैं। गर्मियों में उसका पानी ऐसा ठंडा और सर्दियों में ऐसा नीम गर्म रहता कि जानवर तो जानवर, परियां तक उसमें खोते लगाती। और जब बहार आती तो सारा तालाब कमल के फूलों से ढक जाता, जिनका अक्स पानी में खुद फूलों को शर्माता। तो बहार जब खिज़ां आती तो शायर पुकार उठता कि बरगे खिज़ां पे आज क्या आई बहार है, बरगे खिज़ां पे आज क्या आई बहार है, माई व बरगरेज चमन लालाज़ार है। अगर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि ये बाग भी कंटोनमेंट का हिस्सा हो, अब वहां को चरिंद परिंद पानी पीने के लिए आए तो वहां कछुआ दारोगा लगा दिया, वो बोले शराब की गाड़ी दिखाओ, लाइसेंस चेक करा, नाम बताओ। साहब वो कछुआ अपने कछुए की चाय से फार्म फिल करे, उनकी एंट्री कराए, वहां परिंदों की जानवरों की ये लंबी कतार लग जाती, कई तो बेचारे गर्मी में धूप में सड़कर बेहोश हो जाते। उसी कतार में एक हंसों का जोड़ा था, उन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू की। क्या ये ऐसी क्या गाड़ पड़ी थी कि इस कंटोनमेंट के तालाब का पानी पीने आता? हमारे मुल्क का तालाब क्या बुरा था, हमारे मुल्क का पानी का बुरा, कैसा अच्छा देश है हमारा कि वहाँ एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं, दो हर शख्स एक दूसरे की मुसीबत में काम आता है, कोई किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनता। यहाँ तो जहाँ जाओ खारदार तारे हैं और दीवार खड़े हैं, जिसके पास जाओ वो दारोगा मुंह दिखाता है, आंखें दिखाता है। ये बात जब दारोगा के कान में गई कि ऐसा देश है जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कछुए ने कहा ये तो देश देखना चाहिए, ये तो हमने देखा ही नहीं। उसने हंसों के जोड़े को कहा एंट्री छोड़ो, तुम पानी पी के आओ, मगर शर्त ये है कि हमें तुम अपना देश दिखा दो। हंसों के जोड़े ने कहा ठीक है हम पानी पी लेते, मगर तुम बीच में बोलना मत। हंसों का जोड़ा पानी पी कर आया और उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों से थाम लिया और कछुए से कहा इस लकड़ी के टुकड़े को मुंह से थाम लिया, और वो उसने मुंह से थाम लिया और वो लेकर उड़े। अब वो हवा में उड़ने जा रहे हैं, कछुआ भी आसमान में है, नीचे चेमेगोइयां होना शुरू हो गई। एक ने कहा देख ऐसा कोतवाल है, एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं ले जाने दे रहा बेचारे हंसों के जोड़े। दूसरे ने कहा नहीं लकड़ी का टुकड़ा नहीं मांग रहा है, असल में दांत तेज करना चाहता है। तीसरे ने कहा देखो हमें तो हुब्बुल वतनी का दर्द देते हैं, खुद वतन छोड़े जा रहे हैं। कछुआ घूमना गया, उसने कहा घूमने जा रहे हैं यार, भाई ये कहना था उसने मुझे के पास। तो अम्मा उसकी तो हड्डी पसली एक हो गई, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी हड्डी पसली एक हो। माँ ने कहा बेटा मैंने तुझसे कहा था इन बादशाहों के फेरे में न पड़, ये कहने को बादशाह हैं मगर दुनिया के बंदे हैं। क्या तूने सुना नहीं, दर हकीकत कुर्ब बोदे मर्द में दुनिया गलत, दर हकीकत कुर्ब बोदे मर्द में दुनिया गलत, आशनाई हा गलत नाशनाई। मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसने कहा अच्छा चल किसी इंसान से नहीं कह सकता तो किसी पेड़ से जाके कह दे। यारो ये वो वक्त था जब पेड़ हमारे दिल की बात रच लिया करते थे, हमारे दिल की बात सुना करते थे, पेड़ हमारे खानदान का फर्द होते थे। जंगल के बीच में शहर होता था, ये नहीं कि चारों तरफ कंक्रीट का जंगल फैला है, दरख्त ढूंढने जाओ तो नाम तो नहीं मिलता। बहरहाल ये बात उसे बहुत समझ में आई और उसने जाकर एक पेड़ की खो में कह दिया कि राजा की सर सील है। बस उसका तो जी हल्का हो गया और तबीयत भी बहाल हो गई। मगर राजा ने वहां पर जिस जगह पे दरख्त था सड़क बनवा दी, दरख्त कट गया और दरख्त से किसी ने चारपाई बनाई, किसी ने कुर्सी बनाई, किसी ने सारंगी बनाई। अब साहब चारपाई पर कोई मियाँ बीवी महले इख्तिलात हो तो चारपाई चर्चू चर्चू करने के बजाय कहे राजा की सीन सीन, कुर्सी खटपट करने के बजाय कहे राजा की सीन सीन, और सारंगी पे जो गज लगे तो आवाज आए राजा की सीन सीन। और यारो ये आवाज अभी तक चारों तरफ से दरो दीवार से आ रही है कि राजा के सर सीन हैं, और अगर नहीं आ रही है तो आपके लिए वही शेर है कि महरम नहीं है तू
मगर इस कहानी को सुन के बादशाह ने कहा ये तो मैंने सुन रखी। अब एक और दास्तान को दाखिल हुआ दरबार में और उसने कहा हुजूर हाजिर हूं दिलो जहां से गर्चे कीड़ा हूं मैं जरा सा कहिए कहानी सुनिएगा। तो जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि बहुत पुराने जमाने की बात है। एक था बादशाह हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहानी ऐसी झूठी नहीं, बात ऐसी मीठी नहीं। तो बादशाह सलामत के 3 शौक, एक बिस्यारखोरी, दूसरा निकाहखोरी और हरामखोरी तो सभी बादशाहों का वजीफा है। तो बादशाह सलामत एक दिन अपना 335वां निकाह फरमा कर तनावुल कर रहे। खाने का तरीका उनका ये होता था कि तब तक खाते जब तक तय ना आ जाए। उसके लिए खास तय खाना बनवाया हुआ था। तय आती, तय खाने में जाकर तय करते, फिर आते, फिर खाते और ये मामला तब तक चलता रहता जब तक तय करने के लिए उठा ना जाए। तब 4 आदमी आके उन्हें उठाते। तो आज भी यही हुआ, 4 आदमियों ने उन्हें उठाया और उनके हजला या रसूल में धकेल। उधर सेज पर घूंघट काढ़े बेचारी नौजवान लड़की बैठी थी। 16 बरस का सिख, जवानी की रातें मुरादों के दिन। उसने जो घूंघट की ओर से दूर से देखा तो क्या देखती है कि तोंद चली आ रही। जब काफी देर तक वो तोंद आ चुकी तो बाकी आजा भी मुमताज हुए। बादशाह सलामत झूमते झांकते सेज के पास आए, दुल्हन पर एक गलत अंदाज डाली और घूंघट उठाने के लिए जो झुके उनका रिया हमारे झुके। बादशाह सलामत एक लम्हे को सन्नाटे में आ गए, क्या हो? लेकिन चूंकि दुल्हन के चेहरे पर किसी किस्म का रद्दअमल नहीं था, लिहाजा उन्होंने कोई बात नहीं। दुल्हन पर एक और नजर हवसनाक डाली और फिर दोबारा घूंघट उठाने के लिए झुके। अब की बार जो झुके तो फिर जो हुआ उससे उनकी पूरी शलवार फड़फड़ा कर रही। कमरे में ताफुन ऐसा छाया कि सेज पर सजे फूल मुरझा गए। करीब था कि दुल्हन बेहोश होकर मर जाती। बादशाह सलामत ने खिड़की में मुक्का मारा कि ताजा हवा आएगी। लेकिन अब की बार बादशाह ने कहा नहीं, अब घूंघट नहीं उठाना चाहिए, पहले गुस्लखाने में जाकर कुछ मश्क कर। तो गुस्लखाने गए और अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकते थे लगा लिया। जब इस बात का यकीन हो गया कि अब कुछ ना होगा तो अक़्दे मिक़अद को कसकर, जिस्म थाम कर, कदम जमा कर, दिल थाम कर, सांस रोक कर कि हवा ना अंदर जाएगी ना बाहर निकलेगी, दिल से हजला और उसी में दाखिल हुए। और अब की बार जो घूंघट उठाने के लिए झुके तो फिर तो जो हुआ उसकी गूंज गलियों, बाजारों, मोहल्लों, वीरानों से होती है अंटार्कटिका के बर्फीले सहराओं तक पहुंची। स्मॉग ऐसी छाई कि कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। चूल्हे में तो गैस आ नहीं रही, यहाँ सारी जमा है। अब तो बादशाह एकदम सन्नाटे में आ गए। काटो तो बदन में लहू नहीं, शर्मसार, बिल्कुल शर्मिंदा, पानी हुए चले जा रहे हैं। वजीर आ गया कि ये हो ना हो, बादशाह सलामत के साथ ये मामला हो गया है। उन्हें जाके उनसे राब्ता किया। उसने कहा बादशाह सलामत आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मेरे पास एक न्यू एज योगी का नंबर है, वो अमेरिका में मुकीम है, मैं आपको उसका पता देता हूँ, आप उसके पास जाइए, वो आपकी खून की कान बंद कर देगा। बादशाह सलामत ने वो नंबर दिया और सीधा अमेरिका पहुंचे। बाबा की खिदमत में हाजिर हुए। कहा बाबा बड़ी समस्या का सामना है। बाबा ने कहा बच्चा कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न किया जा सके। फिर बाबा ने कहा इसके लिए कड़ी तपस्या करनी होगी। और बाबा ने उसे एक जूतोड़ का शासन बताया जिसे मार के 9 साल तक बैठा। 9 साल, जहां 9 साल जैसे शहर मदफून पर वक्त गुजरे। 9 साल की इस कड़ी तपस्या के बाद जब से मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि इस तपस्या से अब उनके कूले मुबारक 2 से 1 हो चुके हैं,
अपनी सल्तनत में दोबारा दाखिल। क्या देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की चुटिया बना रही है। बेटी पूछती है अम्मा मैं कब पैदा हुई थी? तो माँ कहती है बेटा जिस दिन बादशाह सलामत ने तारीखी बात मारा था। बादशाह थोड़ा और आगे बढ़े, जंतरी पर तारीख कुछ यूं दर्ज थी, कब्लस बाद और बादस बाद। एक ट्रक गुजर रहा था, उस पर लिखा हुआ नजर आया पाल फौज। बादशाह सलामत ऐसी बेइज्जती शदीद बिल्कुल बर्दाश्त न कर सकते थे। फौरन दरबार में हाजिर हुए, हुक्म दिया कि ये तमाम यादें हमारे दिया की खारिज कर दी जाएं, मिसमार कर दी जाएं। कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि तजावुजात हैं। और हवा तक को बैन कर दिया गया, हवा तक पर पाबंदी लगा दी गई। जब हमसे भेजा में तमाम शहर महबूस हो गया, तब उन्हें अपनी दुल्हन का फिर ख्याल आया। 9 साल बाद तो वो कली से गुलदस्ता बन चुकी होगी। फिर से हज लाया, रूसी में दाखिल हुए, और अब की बार जो झुककर घूंघट उठाया तो फिर जो हुआ वो ज़मान और मकान की कैद से बाहर निकल गया। और आप जानते होंगे कि बादशाह के लिए एक लफ्ज पादशाह भी है, उसकी बुनियाद यही किस्सा है। मगर इसे सुनने के बाद बादशाह ने कहा ये मैंने सुन रखा। और साहब एक से एक दास्तान को किस्सा वो दरबार में आकर उसी वक्त कहानी गढ़ के सुनाता, मगर बादशाह कहता था ये मैंने सुन रखा। इस तरह एक दिन बड़ा चालाक दास्तान को आया, उसने कहा हुजूर जैसे आपके दादा के दादा के दादा के दादा बादशाह थे, वैसे ही मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ताजिर थे, तो किस्सा सुना। उसने कहा हुजूर तो जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि बहुत पुराने जमाने की बात है। एक था बादशाह, यानी आपके दादा के दादा के दादा के दादा, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहानी ऐसी झूठी नहीं, बात ऐसी मीठी नहीं। तो बादशाह सलामत एक दिन शिकार की गरज से निकले। रात का वक्त, सन्नाटा, जंगल में दौड़े चले जा रहे थे। एक हिरन के ताक़ुब में थे कि हाली मवाली सब पीछे रह गए। हिरन आंखों से ओझल हो गया, अपने आप को तने तनहा जंगल में पाया। अब हर रात भी ऐसी तारा चांद अमावस की रात आग को आग सुझाई न देता था। वहां से कुछ रहजनों का गुजर हुआ, उन्होंने बादशाह सलामत को पकड़ा और ले जाके मिस्र के बाजार में पहुंचे और वहां बादशाह सलामत की नीलामी शुरू की। अब ये तो बादशाह आदमी, बड़े आदमी, कोई खरीदे ना थे, बेकार थे, काम तो आता नहीं था। अब हुआ ये कि उधर ही मेरे दादा के दादा के दादा गलती से तिजारत पे निकले हुए थे, तिजारत की गरज से निकले हुए थे। उन्होंने फौरन ताड़ दिया कि ये तो हमारे बादशाह सलामत है। फौरन उन्होंने सोने की अशर्फियां देकर 20,000 खरीद दिया। बादशाह सलामत ने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं अपने वतन जब वापस पहुंच जाऊंगा तो ये सोने की अशर्फियां तुम्हें वापस कर दूंगा। तो हुजूर कहानी जो थी वो तो इतनी थी, अगर तो आपने ये कहानी सुन रखी